This is an eco poem, Silent Scream, and this was published in Feminino Kudrate Kamil. The hues of dawn fall on earth as the blush of a young bride. Temple bells reverberate to hail and praise the divine, making ripples in the pristine Ganges flowing beside. The water is salty now with her tears saline, and the waves are frothy with the dirt of mankind. Flora and fauna bask in the youth of mid-noon sun, flaunting the emerald foliage she swaddles in her bosom. Tears of torrential rains now corrode her of her prime, when avarice hued the greens for the clink of a dime. Dusk coalesces into a starless night like a barren tree, wilting in its plight. The warped trunk bears the human malice, the gnarled branches are bereft of life. Termites of sin have infested the roots, weaken, they beseech for mercy and respite. This is one more poem, Women and Nature Bonds. The revered oak tree, a century-old sentinel, stands rooted in the Mother Earth, a home to the avian. The red strings of belief circumambulate the oak tree for peace and prosperity. She too guards her abode and nurtures her kin, the feminine, and binds the ancestry with the soil of love and humility. She is worshipped with hymns and chants, a protector, a deity. Blossoms of spring swathe the earth with hope and joy, spreading the warmth of sunshine after the winter gloom. The birds hop and warble in mirth under the cerulean sky, just like a house full of little chuckles and chortles through her womb. Canopy of nature sheathes the canvas of flora and fauna, and so does she when she hugs you and wipes off your fears and trauma. But the silent tears and the unheard screams are tearing her apart, when from her bosom rage the tsunamis her angst, or the sweltering heat singeing the drought-ridden land, parched, dwindling woods, drying lakes, rivers, and the banks. She has taken them all, a human curse. Nature too needs care. It's time we introspect and reverse. Nature too needs care. It's time we introspect and reverse. Now I would request Chetna and Mr. Philip, please come over. Good evening to all. My name is A.J. Philip, and I am A.J. Philip. I am a journalist. I have been a writer also, and I and Chetna worked together in the Tribune for 6 years, and we have been friends for 16 years. Yeah. So that is our connection. I have read almost all her works, all her books. She started her first book was for children. She wrote on vegetables. The characters were vegetables. And from that book to the latest book I have read. And I have also reviewed all the books of hers. That is my connection with her. And I always treated her as a humorist because she is basically a humorist. And once I wrote that she is the art bookworld of India. He was a great columnist in the New York Times, and he was a great humorist. His column used to appear all over the world. So she was, I compared her to him. So that flattering, thank you. Yeah, now, in this book, from humor, she has shifted to suspense. This is a book of suspense, more a detective kind of a book. How did this happen? Transition. Yeah. First of all, I have to do Shukrana to Sadhmi Di and Sangeeta ji, for having us here. And I'm just so
this is the format. I'll say it doesn't even have a structured format, and that is what, I've loved about it. There's no hierarchy, as somebody else also pointed out. So, it's like it's a round table of, thoughts and ideas. So that is very touching, to be here. So thank you for having us here. So this is the Gulmohar trilogy. And the Geisha and the Gotapati is the 5th book. First was a children's book, Veggies Go on a Beauty Parade. That was the stage when kids don't eat any vegetables, so I wove them into characters and did that book. And then I did a book on the social media called Trollitically Incorrect. So it was taking a lighter, look at all the silly stuff we do on social media. And this is the Gulmohar trilogy, and as he has rightly said, so I started on a note of satire, and because I'm deeply influenced by Russian satirists and of course Oscar Wilde also, but my favorite satirist is Nikolai Gogol, and so satire is my forte, and I do a column also for Hindustan Times, so that's also more of satire. And so the transition, we all are foodies, Indians. So I usually use a food analogy to best describe this transition from satire to suspense. Doing satire is like a chef doing egg sunny side up. So this book, first book, Gidda on My Gulmohar, was done during the lockdown and post lockdown. So it was trying to take a not a very heavy look at all that was happening during the pandemic and after that, and how the literary landscape was affected. So this book is more about that. And so now the journey from doing egg sunny side up to doing suspense, Garnets Under My Gulmohar and Geisha in the Gotapati was like a chef learning to do the perfect lasagna. Okay. So learning to do the layers, the layers of twists and turns. So I always say that Geisha in the Gotapati is my literary lasagna. So that is about the journey from satire to suspense. You have, Gulmohar Yeah. is a metaphor she uses in all these. In fact, the trilogy is called Yes. Gulmohar trilogy. It's the Gulmohar I would trilogy. like to read, Yeah, a please. few lines I would love you from to the book. read. The Which Gargantuan Gulmohar shook its head knowingly. It sensed some sort of battles brewing. It pricked its ears, rather leaves, as it peered indoors through the window of Ekant. It nodded wistfully. The thought of battles triggered memories buried in its bounteous bosom. The Gulmohar had known wars, wars of the inside, wars of the outside, wars that maimed the skin, wars that maimed the soul. The Gulmohar had survived wars. So had Bede Biji. Bede Biji is The Grand Matriarch. Bloody wars to black wars. When the streets of the capital had been Circa filled with circa 1984, 84. when the streets of the capital had been spilled with rivers of hate, more red than the crimson of its canopy, from the dark winter of democracy that were the 1984 riots to the winter of the world that was the war against pandemic, the Gulmohar had seen it all. Was this the reason why you Yeah. So, this is one of my... So, Gulmohar, you want me to elaborate on that? Yeah. So the Gulmohar, is a character in itself, and how it happened was that, I think during the pandemic, most of us turned to poetry or, prose or whatever. So outside my bedroom window were these two towers of our apartments, and sandwiched in between them was this solitary Gulmohar. Now on that, grey canvas, this canvas of red hot hope,
So that's how the Gulmohar became my metaphor for red hot hope on that black canvas of the pandemic. And so that's how I hadn't planned it as a trilogy, but that's how it started. So I'll take it a little further from, about the Gulmohar. And Sangeeta ji talked about wars also, so I'll just take that a bit further. The Gulmohar's gaze fell through the window upon the cherry blossoms on the bone china indoors. So if you see the cover of the book, the book, it's all about confluence, confluence of cultures, confluence of, flora and fauna, so confluence at so many levels. The Gulmohar wondered how the spring blossoms of Japan, Sakura, had coped with that winter that was war. Were the shadows of war a common destiny for the Gulmohar as much as the cherry blossom? Were the ravages of war the universal fate that now united much of global arboreal population in strife zones across continents, across cultures, from the chinars of Kashmir Valley to the olive trees of Gaza and Israel, to the cypress of Iran, to the Gwilder, I don't know how you pronounce it, Gwilder rose of Ukraine, since you talked about, Ukraine. The Gulmohar let out a loud sigh as the inside and outside collided into a whiff of the future. Alas, it knew it was now staring out at other kinds of battles. Should I read a little bit more to give them a feel? Because I think there's been so much of poetry reading. So, so I'll just read a bit rather than just telling you what the book is about, and rather read out. The Gulmohar gazed out wistfully at the changing landscape. So the Gulmohar is a spectator also, silent spectator. A landscape in the throes of uprootings, unmoorings. Budhwa and Behra were tending to the boulevard in their own signature style, culturally apart. So Budhwa is the gardener and Behra is the loyal family retainer, and they're culturally apart. The Gulmohar gazed out with a heavy heart at rows and rows of towering trees in many kothis of the neighborhood being felled. The kothis themselves were falling. This too is a war, a different kind of war, the Gulmohar sighed. War that bespoke of new narratives of colonization, of newer colonies. The Gulmohar's gaze fell on the uprootings closer at hand. Budhwa was plodding away mindlessly with the hoe and habit. In attack mode, he was thoughtlessly twisting and tugging out the roots of last season's blooms. He lay out a row of uprooted bulbs of lilies. Budhwa, a creature of uproot. The migrant uprooted from motherland Bihar by the compulsions of livelihood and lucre, carelessly and casually attacking the roots of Mother Nature's flora. Behra, the preserver of roots, stomped to the spot to stem the uprootings. Now this is a Punjabi dialogue, I'm sure you'll all understand. Oi Kajra, ए जड़ा क्यों पुट रहा है? जड़ा सांभ के रख दे हैं. So, do you want me to translate it? We all understand. Sandeep is there to translate it for you. So I'll end the passage here. It goes on further. So, the cultural contrast, how one is an uprooter and how the other is a preserver of roots, so symbolized by the,
roots of the lilies and other, flora that one is uprooting and other is trying to preserve. So the koti, the story is, pegged in a ancestral koti, which is crumbling, which is falling apart, So it's all about roots and preserving the roots, and your comments now. See, most writers, what they do is they write their books and then they send it to the publisher. And it is the publisher's job to bring it out. So they choose the cover page and things like that. But in Chetna's case, she takes a lot of trouble to design the cover page. Beautiful For cover. instance, I cover- curated the cover. yeah, this cover has all the characters in the book. All are depicted here, some way or the other. That is one thing which I noticed about her. And also, she makes it a point to give such beautiful bookmarks. Hand-painted. Handmade by herself. And all from She also gifted me something Yes. handcrafted yesterday. Yeah, Okay. there's one for you also. Yeah. And it's all from recycled paper. So I'm trying to live out, what my protagonist is. She's also a climate warrior, a book blogger. So I'm trying to live out it in our daily life also. Yeah. Yeah, please. And she also mentioned, in the beginning that she uses a lot of food Analogies. analogy Yeah. in the No, book. I know. Yeah. Let Almost me, everybody here is a foodie. Foodie, absolutely. Yeah. That is why. let me read Please do. Yes. one. please. The telescopic table, after hosting its evening of high tea, was back to its staple fare, back to its standard size. From a table for 10 to 12, it had been contracted back to being the usual table for 4 to 6. The rest of the Ekant clan had been tricking in to meet the Japani Bahu and Navi Mama over a big fat Punjabi breakfast. Behra and his diminished contingent of Kansamas bustled about their business, bit relaxed, bit relieved. After an evening of juggling so many tea tastes and temperaments, Behra now looked more at home, presiding over platters full of parathas. Parathas. Aloo paratha to gobi paranda to mooli paranda, accompanied by the two things that without which a traditional Punjabi paratha fan platter is never complete: makkan, white butter, and charged buttermilk. That this was not one of the quintessential Ekant repas of the good old days of yore, but a post-pandemic brunch was born out by the downsizing of refashioning of these two core components of the paratha platter. So you can imagine the kind of platter which we did earlier. Yeah. Why? Way to become fat. Also, I had in my review also I mentioned one thing, and that is see when you choose a book, the title should be understood. I, being a South Indian, you would have noticed that I could not pronounce, paratha properly. We were offended. Yeah. So, I mean, a reader like me. Offended all our friends. Okay. Yeah. So, I mean, this kind of what do you say? This kind of The a title. So we had a I bit won't of be able a. to understand. He was so we had You a. understand at least the title. No. So it was about the word Gotapatti. So Yeah, some people also. yeah. So we in the north, I think, understand it more easily. So my only answer to this creative disagreement was, I said, when Lapata ladies can go to the Oscars with the word Lapata. So, we can hope for better things. So, I'm sure, the global audience will somehow, manage to understand Gotapatti also. Yes. Suspense, I can't Making us all hungry. I can't And not telling give the story away. Geisha is in the Geisha and the Gotapatti.
But yeah, broadly, I'll say, it's much more than a suspense story, as he also said in his reviews. No, it has a lot of G's, as you see. So I'll say, The crime happens with all the food being eaten. I'll come to that food part of it to say And that. then it opens with the food. Yeah, it is a story as much a suspense story as much as it's a tale of tea. It's a toast to tea, and I can see it getting. yeah, and Remind me you of know, the Chinese tea and the yeah, Japanese tea. and to the larger role of tea in today's times of strife, the power that tea has. You as a bureaucrat know that better. So it's a story of diplomats, ex-diplomats, and so how they For diplomat is saying, so how they have a reunion and secrets start tumbling out. So tea has a lot to do with that. So tea it toasts tea as a healer in today's time of wars and strife. So it's more it's not a story so much of parathas as a story of tea. And even the components of a crockery chest are like the characters. They are, teapots and tea sets are like characters in the book. So read it and enjoy it, and So that is you broadly have- the thing. You Yeah. have made us very curious About about the the book. book. Besides talking about food, there is something. इसमें कुछ तो लोचा है भाई. कुछ तो लोचा है. We will all have to read this book. Yeah. A book where is it available? It's available at bookstores. Amazon? Yeah, it's available at Bahari Sons. It's available on Amazon. Dear friends, if you have Shobna Narayan as your audience, I'm already, I am elated to, it adds so much value to this festival, which we are doing it for the first time. We have done many poetry readings, we have done sessions on many issues, books, launches, everything. But to do a festival of 3 days is a big responsibility on my shoulder, I would say that. And when people like you come up to listen to us, तो और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए. आप कुछ 2 लाइनें कुछ सुना दीजिए, कुछ चाहे वो कर दीजिए, कुछ 2 मिनट का कर दीजिए, उसके बाद हम ये सेशन स्टार्ट करेंगे पोइट्री की. जो मुझे अभी याद है क्योंकि अभी करके आई हूँ. बस वही सुनाइए. वो है, जब हम लोग नारी की बात करते हैं, और पर्टिकुलरली आपने कहाँ गई वो, आपने बिहार की बात की, मैं बिहार की हूँ. तो और वहाँ जो हमारे पूरब में एक मेंटल स्थिति होती है, कहते हैं, वैसे होती नहीं है लेकिन कहते हैं, और वो एक कि नारी जो है वो अपने में वो तो अपना अस्तित्व ढूंढ रही है. तो वो अस्तित्व, लेकिन ये भोजपुरी में है. Please सुनाइए, हमें आ जाएगा. सो केरलाइट प्लीज फॉरगिव मी. उसका जिस हम लोग बाद में आपको बता देंगे. सखी कैसन बदलल जीवन वारे, सखी कैसन बदलल जीवन वारे, जे ओढ़नी शिशु के पोछल रहे, जे ओढ़नी शिशु के पोछल रहे, बनल आज पिंजड़वा रे. ढकले मन गोर मुखड़ा, लागत जैसे चंद्र ग्रहण वारे. सखी कैसन बदलल जीवन वारे, जे हथवा गुड़िया से खेलल रहे, जे हथवा गुड़िया से खेलत रहे, पकड़त आज ओखली मसूरवा रे. चकिया चक 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 पीसले, जैसे पीसत जीवन वारे. सूनल अखियां, सूनल मतलब सूनी, सूनल अखियां दुआरिया तकले, दुआरिया मतलब द्वार, दुआरिया तकले, कबहू आई है लोहरवारे, कबहू टूटवे हमरे जंजीरवा, कबहू पूरत मन सपनवारे.
क्या बात है, सखी कैसन बदलल जीवन। क्या बात है, क्या बात है, कुछ और भी सुनाइए ना। 1 महीने पहले महाशिवरात्रि हुई थी। वो याद है, वो 1 महीने पहले महाशिवरात्रि हुई थी। तो उस वैसे मैंने भोजपुरी में लिखा, क्या उसका हिंदीकरण करके बोलूं? भोजपुरी में सुनाइए ना, भोजपुरी में सुनाइए। किसी को नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। सबको आता है सब, एक्सेप्ट फॉर मिस्टर फिलिप एंड हिज वाइफ। महाशिवरात्रि का मतलब है शिव और इनका ब्याह हो रहा है, माँ पार्वती जी का। भाई जब तो उनके वाहन को भी सजाया जाता है, सबको सजाया जाता है, सभी लोग बाराती लोग सजते हैं। तो शिव की बारात जाने वाली थी। अरे उनके गण सब तैयार होकर, जो कोई ये गण है तो कोई वो है, तो वो अपना सब आए। तो भाई वाहन ही नहीं है, तो नंदी गायब। तो अब पूछा, तो शिव ने कहा भैया जाओ नंदी को ढूंढ के। तो हमारे गण गए, वापस आए, आप ही जाइए। तो शिव जी जाते हैं नंदी के पास। नंदी जी शिव को देख के तो न शिव जी यहाँ आए। तो शिव ने बोला, ना बनब हमसे बाराती, ना बनब हमसे बाराती, ना बोलब हम तो से बाती, रूठल हूँ हम तो से आज, ना चलब हम तोहरे साथ। नहीं बनूंगा मैं से बारात, मैं रूठा हूँ तुमसे। ना बनब हमसे बाराती, ना बोलब तो से बाती, रूठल हूँ हम तो से आज, ना चलब हम तोहरे साथ। सभी जैते सज धज के, शंख डमरू करताल धर के, पर रहले हम ही खाली हाथ, काहे भूल गए मोहे नाथ। सबरन के बहुते कुछ मिला, पर काहे हमरा कुछ ना दिया। बूझ गए हम कारण का, बूझ गए हम कारण का, नाम दिया जो ठारले हमरा नाम दिया। मेरा नाम ही नाम दिया है तो नहीं, मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो नहीं दिया, तो क्योंकि मेरा नाम ही नाम दिया है तो ना दिया। कैसन लागे तू ही सोच ले, कैसन लागे तू ही सोच ले, जब नंग नंदी बाराती पहुंचे। यही कारण सजा दे हमरा, ठहर से बाहर तोहरा। तो शिव जी मुस्कुराते, पूछते कैसे? नंदी सोच के बोल रहे हैं, काला ततैया, ततैया आप लोग समझ रहे हैं, वॉस्प। काला ततैया, पियर का मतलब पीला। काला ततैया पियर ततैया लइके बेल बनई हरे, काला ततैया पियर ततैया लेके बेल बनई हरे, पातंजलि के डोर बने के उमे घंटा लगाई है। नली द्युति, रंग बिरंगी नली द्युति के तितली से पूछ हमरा सजई, कठोर पीठ पे हमरा मृग मखमली छाल बिछई है। क्या बात है। अब घुटनों पे देखते हैं, घुटरन पे चमचम चमकत मंडूक नेत्र सजई है रे। अब तो सज गए, पर निकले के पहले तू दुई घूंट भंग। किसी महफिल की जान बन जाना और जान डाल देना उसमें। तो अब हम लोग जो हमारा सबसे स्पेशल प्रोग्राम है उसमें मैं सबसे पहले अनुराधा को बुला रही हूँ। अनुराधा प्लीज आप पढ़ें। नमस्कार। ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट है, कल इसका लॉन्च हुआ था। इट्स अ बाइलिंगुअल बुक पब्लिश्ड बाय डॉक्टर संगीता शर्मा, नीलम सक्सेना। उन दोनों ने सुनील भाई जो सेतु के मैनेजिंग एडिटर हैं, उन तीनों की बहुत मेहनत हुई है। इसमें मैं भी हूँ। तो इस किताब में हम लोगों ने ऐसे पोइट्स को लिया है जो बाइलिंगुअल है।
कुछ उनकी हिंदी की रचनाएं हैं, कुछ इंग्लिश की रचनाएं हैं। तो ये अपने तरह की एक किताब है जो आपने कल इसका लॉन्च देखा था। And also it's only women poets. ओनली वुमेन पोएट्स। Basically, I'm not a poet. आप लोग तो इतने, I'm a filmmaker. And लेकिन बस नीलम जी and you know there's a literary warriors group. So and because she spoke of a Polish poet, and since I made a film on Polish refugee children who were given protection by an Indian Maharaja Jam Sahib in Gujarat, so you know that is how I was touched by Christina's poem. So I have written 2 poems, very short. I will not take much of your time, but lot of your heart. And so one, I'll read the English poem first. It's called Nature Nurturer. I think आपने भी environment पे ये कहा. She birthed a seed, a tiny seed, soaked in blood and water of the nurturer nature, encapsulated in loving caress of a divine force. It sprouted itself in a meditative pose, with wrapped arms of tender stems, rooted firmly within the dignified body of the nurturer nature. It struggled and strengthened its poise, raising its head in the bosom to suck the strength. Spreading its wings, it embraced the universal force, creating a web of success and glory, flowering its branches and showering the fruits. Ecstatic of its expansion, the nurturer nature raised her hands to embrace her fruit. Lashing out its thorns, it sealed its flowers, penetrating her till spots of blood shredded the womb. O mother, wailed the bearing earth, cursed with a similar grief, I am annihilated by the very same bristles that churn your aching heart. Let our wounds heal to merge each other. From dust unto dust we mourn their inevitable fall. Beautiful. Very, very nice. Very nice. Thank you, thank you. It's just a humble try. एक है मेरी माँ पे, माँ की बगिया. My mother is obsessed with gardening. अक्सर मैंने अपनी माँ की ममता निहारी है. अक्सर मैंने अपनी माँ की ममता निहारी है, जैसे वो बाग के फूलों को निहारती होंगे, जिन्हें मेरी धारणा सहेजती थी. मेरा भोला बचपन उन बागों के खिलते फूलों सा बेरंग था, जिन्हें मेरी माँ अपने गुनगुनाते प्यार से रंगती थी. जी में एक सुगबुगाहट सी होती थी. काश मैं उनकी बागबानी में एक कली बन के मुस्कुराऊं. शायद तब उनकी ममता का आंचल मुझ पर मयस्सर हो. मेरे नासमझ बचपन को हैरत होती थी, जो गेंदे के फूलों को और संतरे के नन्हे फलों के टूटने से बिफर जाती थी. उस माँ का हाथ मुझे बिखरता हुआ देख आंचल में सिमटाने क्यों नहीं आता. इन सवालों के जवाब खोजते हुए मैं बगीचे में आम से लगे हुए झूलों में जवान हो गई. अक्सर मैं माँ के बगीचे के फूलों से पूछती हूँ, क्यों हो तुम इतने करीब खिले खिले से, क्यों हो तुम इतने करीब खिले खिले से, और मैं हूँ कहीं झाड़ियों में बुझी बुझी सी, जब है हमारे रकीब एक ही. क्यों मोहब्बत के अश्क बहते नहीं उन आँखों से, जब तार तार होता जिस्म मेरा नफ़रत भरी निगाहों से. जवाब आते हैं माँ के प्यारों से, जवाब आते हैं माँ के प्यारों से. कभी जूही की कली खुशबू बिखराती पास आती, कभी जामुन के दाग बेपनाह मोहब्बत दाग देते, कभी आम का रस होठों के आसपास गुजरता दर्द देता हुआ. तब चुपके से मैं उनकी घुसफुस सुन लेती. हम हैं कुदरत के अनमोल फसाने, ना किसी से बैर ना ही प्रेम, ना कोई अपना ना ही पराया.
चाहे किसी ने सजाया गजरों में या सभी ने बिखेर के ठुकराया। हम हैं खुदा की खूबसूरत नेमत, उसी ने बनाया, उसी ने झुकाया। तुम हो कनीज़ इन इंसानी गुलामों की, मांगों की फहरिस्त लिए हुए, भीख में झोली फैलाए। कौन किसको क्या देगा, कौन किसको क्या देगा, मुस्कुराता है बनाने वाला भी। जिस कुदरत ने हमें अपने रंग और खुशबू से बिखेरा, उठाओ हाथ और निगाहें अपनी उसी की महफिल में, उठाओ हाथ और निगाहें उसी की महफिल में। भेजा है जिसने जिस्मों में कैद करके तुम्हें, मांगो आज़ादी रूहों की यहीं और अभी। इसका शीर्षक है हसरत। कि गांव के मकान की भंडरिया में एक अरसे से रखे पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे सबको भनक लग गई है कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह होने को है। अब तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। कढ़ाई ने कलछुल से, कलछुल ने चमचे से, चमचे ने परात से, परात ने भगोने से कहा। खूब रौनक होगी घर में, सारे रिश्तेदार जो आएंगे। हम भी खूब नाचेंगे खटर पटर, कभी नानी, कभी चाची, कभी मौसी, तो कभी बुआ के हाथों। व्यंजनों की कल्पना करने लगे हैं सभी बर्तन, कि व्यंजनों की कल्पना करने लगे हैं सभी बर्तन। कर रहे हैं आपस में खुशी खुशी चटर पटर, याद कर रहे हैं बड़े भैया की बिटिया का ब्याह। हफ्तों पहले जमा हुए रिश्तेदार, धूमधाम, चहल पहल, बिटिया की विदाई और साथ ही अपनी भी विदाई। तब से हम बंद हैं इस भंडरिया में, कढ़ाई ने उदास होकर कहा। खबर लाई है कलछुल कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से। खबर लाई है कलछुल कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से। यूं तो इस बात से खुश हैं पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे कि हो गया छोटे भैया की बिटिया का ब्याह। पर अफसोस इस बात का है कि ना तो घर में हुई रौनक, ना जमा हुए रिश्तेदार और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का, और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का। इसका शीर्षक है पत्थर। आज का जो समय है उसे अपने जहन में रखिए और कविता सुनिए। कि घर से पैदल स्कूल जाते हुए अक्सर ही रास्ते में पड़े किसी छोटे से पत्थर के टुकड़े को बना लेती अपना साथी और इसे पाँव के अंगूठे से उछालते हुए उसकी सीध में आगे बढ़ते हुए कब पहुंच जाती स्कूल पता ही नहीं चलता। बड़ी हुई पढ़े सुने लैला मजनू के किस्से, ये भी कि मजनू को पत्थरों से मार मार कर मार डाला। डर बैठा ऐसा जो कैद हो राजकुमारी की जान जंगल के राक्षस के पास। ब्याह हुआ और जब कभी दाल में निकल आता छोटा सा पत्थर, पूरा घर सर पर उठा लिया जाता, ऐसे जैसे कड़कती हो बिजली आसमान से। फिर पूछती पत्थर के देवता को। याद आ जाता किस्सा जो दादी बुआ को सुनाती कि अहिल्या को उनके पति ने श्राप दे कर दिया था पत्थर। घर बना और जब जड़ गए उसमें खूबसूरत पत्थर तो लगा मिल रहा हो उलाहना कि अब मारती रहो इन्हीं पत्थरों पर अपना सर। पर ये लगा ही नहीं, सच पत्थर क्या जड़े सबके दिल ही हो गए पत्थर के। पसर गई पूरे घर में एक औपचारिकता जैसे होता हो कोई सरकारी समारोह। घर ही क्या मोहल्ले का भी तो यही आलम है। कौन किसके पड़ोस में है नहीं पता, एक दूसरे की बगल से गुजर जाते हैं ऐसे जैसे बुत बने हों पत्थर के। इंसान ही नहीं, शब्द भी पहले जो मार करते थे तीर की तरह अब पड़े रहते हैं पत्थर से। धीरे धीरे घिरता जा रहा है अंधेरा चौतरफा और आम आदमी बस देख रहा है पत्थर की तरह, और आम आदमी बस देख रहा है। इसका शीर्षक है कतार। कि मंदिर के बाहर भक्तों की कतार है जो चढ़ाने आए हैं प्रसाद अपनी मन्नत पूरी होने पर या फिर पूरी होने की कामना लिए भगवान को एडवांस में प्रसाद चढ़ाने।
साथ ही एक कतार और है मैले कुचैले कपड़ों में, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के, जो फैला देते हैं अपनी झोली भक्तों को अपनी ओर आता देखकर कि भक्त डाल दे उसमें पैसा, रुपया या फिर खाने का सामान। कभी कभी इस कतार में अफरा तफरी भी मच जाती है, जैसे ही वे देखते हैं कि कोई बड़ा सेठ खैरात बांटने आया है। डंडा फटकार कर पुलिस वाला उन्हें फिर करता है कतारबद्ध। दोनों दृश्य मन में गुत्थम गुत्था होते हैं दिल के किसी कोने में एकदम से ख्याल आता है कि क्या इन मैले कुचैले कपड़े पहनने वालों की नहीं होती कोई मन्नत? यदि होती है तो फिर ईश्वर इनकी मन्नत क्यों नहीं करता पूरी? क्या वह नहीं चाहता कि ये लोग भी उसे चढ़ाएं प्रसाद? वर्षों से देख रही हूँ वही कतार, वही चेहरे, कतार जो अब और बढ़ गई है, और चेहरे जो और बुढ़ा गए हैं, और उसमें जुड़ गए हैं कितने ही और नए चेहरे, तो अब मैं एक गज़ल सुना रही हूँ कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़। कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़। और सफ़र कहाँ से कहाँ तक का करता रहता है, कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज़। बहुत शुक्रिया। कि कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज़, और जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज़। और हुई जो लकड़ियाँ सीली तो जलना मुश्किल था, जलाने उनको कई बार फिर जला कागज़। बहुत शुक्रिया। कि जलाने उनको कई बार फिर जला कागज़। और हुआ तो कुछ भी नहीं था अभागे गाँवों में, खबर विकास की लेकर मगर गया कागज़। कि खबर विकास की लेकर मगर गया कागज़। और था हालचाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, बहुत ही खास था लाया जो डाक किया कागज़। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कि था हालचाल उसमें अक्स मेरी बिटिया का, बहुत ही खास था लाया जो डाक किया कागज़। और इस गज़ल का अंतिम शेर कि हुआ ज़माना ये कीबोर्ड और स्क्रीन का क्यों, पढ़ेगा कौन हमें कह के रो पड़ा कागज़। वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज़, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज़। बहुत 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 शुक्रिया। और एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। और एक इशारे पर खबर वो दब गई, कि एक इशारे पर खबर वो दब गई, कुछ न कर पाई ये अखबारों की भीड़। कि एक इशारे पर खबर वो दब गई, कुछ न कर पाई
ये अखबारों की भीड़। और आधी आबादी के लिए शेर पढ़ती हूँ कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, पास कहने को थी अधिकारों की भीड़। कि पास कहने को थी अधिकारों की भीड़। और ये शेर मैं अपने पिता के लिए पढ़ती हूँ कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, आसमां में कितनी हो तारों की भीड़। बहुत शुक्रिया। कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, आसमां में कितनी हो तारों की भीड़। और शेर सुनिए कि सज न पाएगा कभी कोई गुलाब, कि सज न पाएगा कभी कोई गुलाब, हो न उसके पास घर खारों की भीड़। कि हो न उसके पास घर खारों की भीड़, और खुद को फिर तन्हा नहीं पाते कभी, कि खुद को फिर तन्हा नहीं पाते कभी, पास अपने रखते जो यारों की भीड़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि खुद को फिर तन्हा नहीं पाते कभी, पास अपने रखते जो यारों की भीड़। और शेर सुनिए कि शब्द ही जब वार कर दें तीर सा, कि शब्द ही जब वार कर दें तीर सा, मत जुटाओ इतनी तलवारों की भीड़। कि मत जुटाओ इतनी तलवारों की भीड़। और कम नहीं, आज का समय है कि कम नहीं कोई किसी से भी कहीं, कि कम नहीं कोई किसी से भी कहीं, बढ़ रही है यूं अहंकारों की भीड़। कि बढ़ रही है यूं अहंकारों की भीड़। और इस गज़ल का मक्ता पढ़ती हूँ कि चाँद तन्हा कब का हो जाता किरण, कि चाँद तन्हा कब का हो जाता किरण, आसमां में गर न हो तारों की भीड़। कि आसमां में गर न हो तारों की भीड़। बहुत शुक्रिया। एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। सी और आप सबकी हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ शेर। कि आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ। और शेर सुनिए कि मोबाइलों में जोड़ते हो गैरों से रिश्ते, मोबाइलों में जोड़ते हो गैरों से रिश्ते, आपस के फासले हैं जो उनको भी मिटाओ, आपस के फासले हैं जो उनको भी मिटाओ। फिर आधी आबादी के लिए कि सागर में फना होने से पहले नदी सुनो, सागर में फना होने से पहले नदी सुनो, दुनिया को ज़रा दास्तां कुछ अपनी बताओ, फिर दुनिया को ज़रा दास्तां कुछ अपनी बताओ। और मगरूर इन दिनों में बहुत है ये आसमां, मगरूर इन दिनों में बहुत है ये आसमां, है लाज़मी ज़मीन पे अब इसको झुकाओ, कि है लाज़मी ज़मीन पे अब इसको झुकाओ। शेर सुनिए कि वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को, वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को, दीवार से उन चींटियों को तुम न गिराओ। बहुत शुक्रिया। कि वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को, वो लौट रही दाना लिए अपने घरों को,
दीवार से उन चींटियों को तुम न गिराओ। और फिर ये शेर सुनिए कि तन्हाइयों की कैद से हो जाओगे रिहा, तन्हाइयों की कैद से हो जाओगे रिहा, बस्ती में कह कहो कि पतंगे जो उड़ाओ, कि बस्ती में कह कहो कि पतंगे जो उड़ाओ। और शेर सुनिए कि ए वक्त मुझको ले चलो माजी की गोद में, ए वक्त मुझको ले चलो माजी की गोद में, उस दौर का कुछ जादू भरा किस्सा सुनाओ, कि उस दौर का कुछ जादू भरा किस्सा सुनाओ। अरे मक्ता पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि हर एक शय में जब कि वो मौजूद है किरण, हर एक शय में जब कि वो मौजूद है किरण, मत कैद उसे मंदिर और मस्जिद की दिलाओ, कि मत कैद उसे मंदिर और मस्जिद की दिलाओ, आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, आवाज़ दे के पंछियों को पास बुलाओ, मिलता है सुकून प्यार से दाना जो चुगाओ, मिलता है सुकून प्यार। एक कविता है तितलियाँ। तितलियाँ मात्र सौंदर्य सूचक नहीं होती, वे कैनवस से बाहर मोहब्बत का आईना भी होती हैं। क्या बात है। तितलियाँ मात्र सौंदर्य सूचक नहीं होती, वे कैनवास से बाहर मोहब्बत का आईना भी होती हैं, जिनके लम्स में एक मुलायम आरामगाह का एहसास होता है और हया की रंगत भी। तितलियों का शफ़ाक रंग प्यार में डूबा चश्मे शरारा होता है। पता नहीं मोहब्बत के बारे में तितलियाँ क्या सोचती हैं, पर फूल के नज़दीक जाते ही तितलियाँ शायद लड़कियाँ हो जाती हैं। कोई नहीं जान पाता कि फूल पर बैठी तितलियाँ फूल की खुशबू में मदहोश इतरा रही हैं या शहद बना रही हैं। कुछ तितलियाँ लड़कियों में तब्दील नहीं हो पाती और कुछ लड़कियाँ सीधे स्त्रियाँ बन जाती हैं। यह कहना मुश्किल है कि तितलियाँ भी सीधे स्त्रियाँ बन पाती हैं या नहीं, पर यह सच है कि लड़कियों को सीधे स्त्रियाँ बनने और तितलियों को सीधे स्त्रियाँ बनने के लिए एक आग से गुजरना पड़ता है। ये भी कहना मुश्किल है कि लड़कियों का बचपन में ही स्त्रियाँ बनने का या तितलियों का सीधे स्त्रियाँ बनने का, या फिर यह दुर्लभतम ही पर कुछ स्त्रियों का भी तितलियाँ बनने की जो प्रक्रिया है, जो दर्द का मादा है, वह किसमें ज़्यादा है। बहरहाल ये तो तय है कि लड़कियाँ तितलियाँ होती हैं और कुछ तितलियाँ लड़कियाँ, पर कुछ दुर्लभ स्त्रियाँ तितलियाँ भी होती हैं। ये यूं ही अपने विचार रखे मैंने। इसका शीर्षक है पुराने लिफाफे का खत। तुमसे बिछड़ने के वक्त वो करार भी टूट गया था जो हमने नहीं किया था। हमारे बिछुड़ जाने के तुरंत बाद ही तुम्हें इतिहास बना देने को आतुर लोग कामयाब हो गए थे और मेरे आंसुओं के दरिया तक उन पत्थर दिलों को पिघलाने में नाकामयाब रहे थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे शहर में भी, यकीनन जहाँ तुम नहीं रहते थे, और अपने शहर में भी जहाँ तुम्हारा मिल पाना नामुमकिन सा था, और हर उस शहर में भी जहाँ हमें बस तसव्वुर में मिलना था। मेरे कान तुम्हारी आवाज़ को, मेरी आँखें तुम्हें देखने को और मेरे एहसास तुम्हारी खुशबू को तरस गए थे। तुम मुझे कहीं भी कभी भी नज़र नहीं आए। मैंने तुम्हें रोज़ ख़त लिखे थे जो मेरी डायरी में ही मौजूद रह गए।
मैंने तुम्हें पन्नों पर लिखी तारीख के साथ पलटा किया। हैरानगी है कि इस एक ही दुनिया के एक ही शहर में मैं और तुम समूचे के समूचे गुम हो गए। हमने ये नगमा कभी गुनगुनाया ना था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, मगर बन गए। और वक्त तुम्हें कभी नहीं बता पाएगा कि इस दरमियाँ हमारे बीच से क्या गुज़र गया। तेरे बख्शे हुए गम भी हमें एहसान जैसे हैं। तेरे बख्शे हुए गम भी हमें एहसान जैसे हैं। मैं करती खैर मकदम हूँ कि ये मेहमान जैसे हैं। तेरे बख्शे हुए गम भी हमें एहसान जैसे हैं। शेर सुनिए कि मेरे ख्वाबों को फूलों सा ज़रा सा खिल तो जाने दे। मेरे ख्वाबों को फूलों सा ज़रा सा खिल तो जाने दे। ये खिलते तीरगी में ही बहुत नादान जैसे हैं। ये खिलते तीरगी में ही बहुत नादान जैसे हैं। मैं करती खैर मकदम हूँ कि ये। अगला शेर सुनिए कि मुझे मालूम वस्ले शब सराबे शौक है मेरा। मुझे मालूम वस्ले शब सराबे शौक है मेरा। शबे मेराज के अरमान तो बस अरमान जैसे हैं। शबे मेराज के अरमान तो बस अरमान जैसे हैं। अगला शेर यूँ है कि कहीं कोई तो नामाबर मेरे सहरा सफ़र में हो। कहीं कोई तो नामाबर मेरे सहरा सफ़र में हो। सबाओं के हंसी किस्से भी तो ऐमान जैसे हैं। सबाओं के हंसी किस्से भी तो ऐमान जैसे हैं। और आखिरी शेर आपके सामने है कि तेरी रानाए बिस्मिल में तेरी बातों की बिस्मिल भी। तेरी रानाए बिस्मिल में तेरी बातों की बिस्मिल भी। तेरे बख्शे हुए गम भी हमें
एहसान जैसे है, मैं करती खैर मकदम हूँ कि ये मेहमान जैसे हैं। बहुत शुक्रिया। नसीम, तुम्हारे नाम और शोभना जी के नाम एक छोटा शेर जो मुझे लगता है कि लिखा तो अपने बेटे के लिए था, पर मेरे वो सारे दोस्त, मेरे सारे रहनुमाओं और जिन सब से मेरी मोहब्बत है, मेरा दिली रिश्ता है, उन सब के लिए है। फ़क्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, फ़क्र होता है तुम्हारी उड़ान पर, सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना मेरे पास, सुनो ना कभी थक जाओ तो लौट आना मेरे पास, घोंसला हूँ मैं तुम्हारा, घोंसला हूँ मैं तुम्हारा। निभा सका न जो कांटों से, निभा सका न जो कांटों से, हक नहीं उसका गुलाब पर, निभा सका न जो कांटों से, हक नहीं उसका गुलाब पर। कल उम्मीदें बोई हैं गमलों में, कल उम्मीदें बोई हैं गमलों में, देखें कब खिलती हैं। तो ये सब शेर आप सबके लिए नज़्र। मेरी एक किताब है जो अभी लोगों तक नहीं पहुंची है, दोस्त के नाम मामूली खत। तो जो मुझे अपना दोस्त समझते हैं उन सब के नाम है ये। अब आप सुने। दोस्त के नाम मामूली खत, दर्द के सफ़र में कदम दो कदम साथ चले तो रास्ता कुछ खुशगवार हुआ। वीरानियों में उनकी अल्हड़ हंसी ने बारहा पस्त हौसलों को पर दिए। उनकी बातों ने हर मात को शह में बदलने की ताकत दी। यतीम होकर भी जब भी उनके दर पहुँचे, लगा अपना तो पूरा कुनबा है। एक दोस्त जिसके करीब हुए तो बेनूर ज़िंदगी गुलजार लगी, जिसके उजालों में अंधेरे कुछ कम हुए, जिनकी झिड़कियों में प्यार बरसा, जिनकी वक्त बेवक्त की फिजूल बातों में अकेले में मुस्कुराने के बहाने दिए। दोस्त जिनके बिना जीना नहीं आया, उन्हें प्यार ही किया जा सकता, वे सिर्फ प्यार के लिए बने हैं। कभी कहा तो नहीं गया जो खत में लिखा गया, दोस्त के नाम एक मामूली खत। रूह ने तेरी आँखों से पनाह मांगा था, कितने अनजान थे मौत का सामान मांगा था। रूह ने तेरी आँखों से पनाह मांगा था, कितने अनजान थे मौत का सामान मांगा था। हंसने की कीमत चुकाने में उम्र भर का रोना था। दो बोल सुनने सुनाने की सज़ा ताउम्र की वीरानी थी। सूफियाना इश्क था जिस्म से बेपरवाह, बहुत रूहानी था। तूने फिर भी बर्बादी की ठानी, बस रुसवाई अपने हाथ आनी थी। कोई फरियाद करे तो किससे, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी। नसीब में जब तन्हाई ही तन्हाई हो, मोहब्बत को यहाँ मोहब्बत कहाँ मिलती। ये दुनिया है यहाँ दुनियादारी निभा, चल सकता है अब भी तो खुद का हाथ थाम, तन्हा चल तन्हा चल। छोटी सी नज़्म और सुनाती हूँ, उसके बाद हम लोग वाजपेयी जी को सुनेंगे। ज़मी किससे पनाह मांगे, आसमां किससे कंधा। ज़मी किससे पनाह मांगे, आसमान किससे कंधा। सूरज किससे रोशनी मांगे, चाँद किससे ठंडक। बरगद किससे छाँव मांगे, आम किससे फल। फूल किससे खुशबू मांगे, तितलियाँ किससे रंग। नदी किससे जल मांगे, नाव किससे ठौर। पंछी किससे पर मांगे, मृग किससे कस्तूरी। सीप किससे मोती मांगे, समीर किससे सांस। रास्ता किससे मंजिल मांगे, सुबह किससे उजाला।
शायर किससे नज़में मांगे, मुसव्विर किससे रंग, कुदरत के खेल निराले, जो पास तेरे बांटता चल। एक बड़ा शायर, एक बड़ा गीतकार, एक बड़ा नाम जिसको सुन सुन के और अच्छा लिखने का हौसला पैदा होता है, तो ऐसे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को बुलाने के लिए मैं अपने एक तो शायर होता है कि एक शेर रखती हूँ आपके सामने। कई जन्मों की बेचैनियाँ और प्यास लेकर कोई इस ज़मीं पर उतरता है तो शायर होता है, बहुत बहुत शुक्रिया संगीता जी। और शोभना जी बैठी हैं श्रोता की तरह रूप में, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। चलिए कविता शुरू करता हूँ। मुक्तक, 2 मुक्तक सिर्फ, अच्छे लोगों के लिए। दुनिया में अच्छे लोग बहुत थोड़े होते हैं, दुनिया उन्हीं से चलती है। दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें ख़तरे हों उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। एक बिल्कुल ताज़ा नया मुक्तक है, बिल्कुल अलग तरह की बात है। चाहे जितना निडर बने सब, मन ही मन में डरते हैं। चाहे जितना निडर बने सब, मन ही मन में डरते हैं, तभी किसी अज्ञात पात्र में शक्ति अपरिमित भरते हैं, तभी किसी अज्ञात पात्र में शक्ति अपरिमित भरते हैं। लाखों देवी और देवता, लाखों पूजा घर, लेकिन कि लाखों देवी और देवता, लाखों पूजा घर, लेकिन सच तो ये है हम सब अपने डर की पूजा करते हैं। कि सच तो ये है हम सब अपने डर की पूजा करते हैं। 2 लाइनों की 2 प्रेम कविताएं, एक पुरानी इमेजरी बिम, पुराने बिम में, एक नए इमेजरी में। पहली पुरानी इमेजरी में एक छोटी सी कविता कि कमरे में सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज़्यादा परेशान करती हैं, कि कमरे में सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज़्यादा परेशान करती हैं, बाथरूम में चिपकी तुम्हारी छोटी छोटी बिंदियाँ। दूसरी 2-3 पंक्तियों की ये भी है नई इमेजरी में। वो ईमेल हो या फेसबुक या कुछ और, वो ईमेल हो या फेसबुक या कुछ और, जहाँ कहीं ज़रूरत होती है किसी पासवर्ड की, कि जहाँ कहीं ज़रूरत होती है किसी पासवर्ड की, तो तुम्हारे नाम में कुछ जोड़ने या घटाने से बन जाता है पासवर्ड। कि तुम्हारे नाम में कुछ जोड़ने या घटाने से बन जाता है पासवर्ड, लेकिन जब तुम्हारा नाम सिर्फ तुम्हारा नाम होता है तो वो मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड बन जाता है। मैं अलग अलग पोइट्री फॉर्मेट्स में, ताकि आप के लिए तो 2-3 दोहे सुनिएगा। बहुत पुराना ये फॉर्मेट है। पहला दोहा ये है कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। कि मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। पिंजरा जब खोला गया कुछ बरसों के बाद, पिंजरा जब खोला गया कुछ बरसों के बाद, उड़ लेता था वो कभी उसे नहीं था याद। कि उड़ लेता था वो कभी उसे नहीं था याद। अलग अलग तरह के दोहे हैं। एक ये दोहा ये है कि ये मन के विश्वास हैं या हैं मन के रोग, ये मन के विश्वास हैं या हैं मन के रोग, क्या क्या भ्रम पाले हुए उम्र गंवाते लोग। कि क्या क्या भ्रम पाले हुए उम्र गंवाते लोग। कला
और कविता बाजार में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाजार हो तो बुरी बात है। तो दोहा सुनिए कि फन के सौदे खूब कर लेकिन रख एहसास, कि फन के सौदे खूब कर लेकिन रख एहसास, अलग तकाजे पेट के अलग रूह की प्यास। क्या बात है। कि अलग तकाजे पेट के अलग रूह की प्यास। आखिरी दोहा ये है, इसी महीने में तो वो सशक्तिकरण 8 मार्च भी था। सशक्तिकरण में बाधाएं क्या क्या है, कहीं मानसिकता बाधा है, कहीं वो जो हमारी परंपराएं हैं वो बाधा है, कहीं आधुनिकता बाधा है। 3 दोहे सेम। पहला ये है कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थकहार, कि दफ्तर से घर आ गए दोनों ही थकहार, पत्नी ढूंढे केतली पति ढूंढे अखबार। तो ये दोहा अब थोड़ा बदल जाएगा कि दफ्तर से थक हार कर दोनों आए लौट, पत्नी ढूंढे केतली पति खोजता रिमोट। परंपरा, परंपरा कि मैंने कन्यादान का छोड़ा अजब विधान, मैंने कन्यादान का छोड़ा अजब विधान, बेटी कोई वस्तु है कर दूं जिसका दान, कि बेटी कोई वस्तु है कर दूं जिसका दान। आधुनिकता कि करता तेरी देह का हर पल कारोबार, कि करता तेरी देह का हर पल कारोबार, नारी तेरी मुक्ति का दुश्मन ये बाजार, कि नारी तेरी मुक्ति का, और नारी भी इंसान है क्षमता लिए अपार, महज वस्तु सा पर इसे पेश करे बाजार। तो ये नारी संस्कृति। आखिरी दोहा सुनिए, हमारे भीतर जो शक्ति है कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान, कि प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान। तो ये हमारी मिट्टी का अपना वो है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल वगैरह। माहिया, हमारी रेणु जी माहिया लिखती हैं बहुत अच्छे, ममता जी भी लिखती माहिया पे। ये छोटा सा छंद है, 2-3 पंक्तियों वाला, बहुत छोटा सा, और इसको टप्पा भी कहते हैं। जगजीत सिंह साहब ने भी गाए, सिनेमा में भी गाया गया। तो सुनिएगा कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। ये माहिया छोटा छंद है। दूसरा ये आपके सबके लिए भेंट है कि बस ये ही तरीका है, बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। और ये जो माहिया छंद है, वो माहिया का मतलब ही ये माही जिससे प्रेम करते हैं, प्रेमी प्रेमिका, पर जो भी फॉर्मेट होता है वो उसमें सब फिर बदल जाता है, सारा उसका कंटेंट बदल जाता है। तो एक ये अलग तरह का माहिया सुनिए कि वोटों की मेहरबानी, वोटों की मेहरबानी, अपराधी जी की संसद में अगवानी, अपराधी जी की संसद में अगवानी। और कोरोना के टाइम लोगों ने बहुत डराया। मैंने कहा हम क्या कर सकते हैं, जो करना उसी को करना है। तो माहिया, एक माहिया ये है कि जब उम्र ये पूरी है, जब उम्र ये पूरी है, अमृत क्यों खोजूं मरना भी जरूरी है। दो माही बस आखिरी ये कि पीड़ाओं का घर है, पीड़ाओं का घर है, जो भी है दुनिया रहना तो यहीं पर है। और आखिरी माहिया सुनिए कि जीवन एक लोरी है,
जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है, झूला सपनों का और वक्त की डोरी है। तो अब गज़ल पर से एक बिल्कुल ताज़ा कविता सुना के फिर मैं गज़ल सुना के इसको आगे बढ़ाता हूँ। ये जो कविता है अभी डायरी पे नहीं उतरी, बिल्कुल ताज़ा कविता है। हमारी प्रोसेस ऐसी अंदर अंदर चलती है, जब सुना उना लेते तब डायरी पे आती है। जी जी, तो कविता सुनिएगा। बेहद निराशा के दिनों में, बेहद निराशा के दिनों में हम सबको दिलासा देने के लिए अम्मा कहती थीं, कभी न कभी घूरे के भी दिन बदलते हैं, कभी न कभी घूरे के भी दिन बदलते। घूरे के दिन यानी कचरे के ढेर के दिन, जिससे सब दूर भागते हैं, जिससे बचकर निकलते हैं, जिसकी उपेक्षा करते हैं, जिससे घृणा करते हैं। निकलना ही पड़े तो नज़रें बचाकर और नाक और मुंह पर हाथ रख कर निकलते हैं। उस घूरे के दिन बदलते हैं। पर इतने वर्षों बाद जब आज देखता हूँ, पर इतने वर्षों बाद जब आज देखता हूँ कि झूठ इतना सम्मानित है, पर इतने वर्षों बाद जब आज देखता हूँ कि झूठ इतना सम्मानित है, अज्ञान इतना सम्मानित है। कविता की भाषा की मर्यादा न हो तो कहूँ मूर्खता इतनी सम्मानित है, घृणा इतनी सम्मानित है, और तो और विकृति, उन्माद और क्रूरता तक सम्मानित है। तो बार बार याद आती है अम्मा की बात कि कभी न कभी घूरों के भी दिन बदलते हैं, कि कभी न कभी घूरों के भी दिन बदलते हैं। और गज़ल की तरफ आता हूँ। जो आसमां पे सुबह की लाली उतर गई है वो शायरी है, जो आसमां से सुबह की लाली उतर गई है वो शायरी है, हर एक जर्रे की जैसे रंगत निखर गई है वो शायरी है। और शेर ये है कि तमाम लहरें ही दौड़ी आईं जो मैं समुंदर के तट पे पहुंचा, तमाम लहरें ही दौड़ी आईं जो मैं समुंदर के तट पे पहुंचा, लिपट के पाँव से प्यार से जो लहर गई है वो शायरी है। क्या बात है जी, लिपट के पाँवों से प्यार से जो लहर गई है वो शायरी है। और शेर ये है, दिल्ली में बैठे हम सब लोग, कि पड़ा रहा वो सड़क पे घायल, सब अपनी धुन में रहे गुजरते, कि पड़ा रहा वो सड़क पे घायल, सब अपनी धुन में रहे गुजरते, अभी जो एक नेक दिल की उस पे नजर गई है वो शायरी। और शेर ये है कि मिले हैं ढाबे के छोटू को जो इनाम में 10 के नोट 2-2, कि मिले हैं ढाबे के छोटू को जो इनाम में 10 के नोट 2-2, जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट उभर गई है वो शायरी है। और गज़ल का शेर ये है कि था पहले पहले तुम्हें जो देखा, तभी जो तुमने मुझे था देखा, था पहले पहले तुम्हें जो देखा, तभी जो तुमने मुझे था देखा, वही नज़र जो मेरी नज़र में ठहर गई है वो शायरी है, कि वही नज़र जो मेरी नज़र में ठहर गई है वो शायरी है। और शेर ये है कि है आसमां पे जो एक मुसव्विर रचा धनक जिसने खूबसूरत, ज़मीं पे जादूगरी जो उसकी उतर गई है वो शायरी है। और आखिरी ये है कि नहीं किसी को पता है इतना है फूल कितने है कैसी डाली, नहीं किसी को पता है इतना है फूल कितने है कैसी डाली, जो हर तरफ उनकी भीनी खुशबू बिखर गई है वो शायरी है। कि जो आसमां से सुबह की लाली उतर गई है वो शायरी है, ज़मीं पे जादूगरी जो उनकी बिखर गई है वो शायरी है, हर एक जर्रे की जैसे रंगत निखर गई है वो शायरी है। छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, छुपाए राज कितने ही सभी की जिंदगानी है, कोई भी शख्स हो सबकी अलग अपनी कहानी है, छुपाए राज कितने ही। और शेर सुनिएगा। हकीकत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से,
हकीकत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, जुबां फौरन बताती है, जुबां फौरन बताती है वो कितना खानदानी है, छुपाए राज कितने ही। और शेरी है, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है, छुपाए राज कितने ही। और एक शेर यूँ है कि गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूँ, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूँ, मगर मैं भी वो ज़िद्दी हूँ, मगर मैं भी वो ज़िद्दी हूँ, जिए जाने की ठानी है, छुपाए राज कितने ही। तो शेर सुनिएगा, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है। और ये शेर सुनेगा, देखिए गज़ल में शेर में दो पंक्तियां होती हैं जिनको मिसरा बोलते हैं, उनके नाम होते हैं, आप सब जानते हैं। सुनिएगा, गज़ल का शेर है हम तुम अधूरे एक दूजे बिन, गज़ल का शेर है हम तुम अधूरे एक दूजे बिन, जो मैं मिसराए ऊला हूँ तो तू मिसराए सानी है, छुपाए राज कितने ही। बहुत शुक्रिया। और एक नाजुक सा शेर सुनिएगा। अब मैं कहीं सुना रहा था तो रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट थे बुज़ुर्ग, बहुत साल बाद लौटे थे भारत में, पहली बार कोई कवि सम्मेलन मुशायरा सुन रहे थे। तो बाद में वो चाबक मिले, बोले मैंने ज़िंदगी में पहली बार जाना कि शेर भी नाजुक हो सकता है। तो सुनिएगा, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, जो अब छूटा है दरिया से, जो अब छूटा है दरिया से, तो बस ठहरा सा पानी है, छुपाए राज कितने ही। और एक शेर जो अमूमन छोड़ देता हूँ, नहीं सुनाता, यहाँ सुनाता हूँ, आप सब इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं। मास्को के रेड स्क्वायर से मिला था, हमारा गाइड बता रहा था ये फला जी की मूर्ति इन्होंने 1 लाख लोग मरवा दिए थे। तो शेर सुनेगा, और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, और अभी जो भी देखिए, जो सोचो तो जिसे इतिहास का हम नाम देते हैं, जो सोचो तो जिसे इतिहास का हम नाम देते हैं, वो इंसानों के लाशों में बदलने की कहानी है, छुपाए। और आखिरी शेर है, ये हंसते फूल ये गाते परिंदे झूमती फसलें, ये हंसते फूल
ये गाते परिंदे झूमती फसलें, अब उसका नाम जो भी हो, अब उसका नाम जो भी हो, उसी की मेहरबानी है। छुपाए राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है। कोई भी शख्स हो, सबकी अलग अपनी कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया। कवि नहीं होता, शायर नहीं होता, लोग क्रिएटिव नहीं होते तो कैसे जीते आप लोगों के दम पर। मतलब सारी थकान मेरी मिट गई। मैं पिछले 15 दिन से इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए अकेले ही सब कर रही थी, क्योंकि सेतु में जो लोग हैं, एक तो हमारा टाइम जोन भी डिफरेंट है, वो टोरंटो में है वो लोग, और 10-12 घंटे का जो ये डिफरेंस होता है, तो बातचीत ही ठीक से नहीं होती, मैसेज से कुछ ठीक से वो होता है। और मैंने ये जिम्मेदारी, उन्होंने कहा कि अच्छा कम से कम एक दिन का कर लीजिए। मैंने कहा कि एक दिन, आपको याद है वाजपेयी जी, एक बार हम लोगों ने एलियांस में आज से मेरे ख्याल 2013 का समय था, केशव जी थे, हम लोगों ने वहाँ पोइट्री पढ़ी थी, इतना एक फेस्टिवल मनाया था, 3 दिन का वो भी था। तो मैंने कहा कि अगर मैंने 2013 में कर लिया था तो शायद फिर भी कर लूँगी। तो मैंने कहा आप बेफिक्र रहिए, हम लोग कोशिश तो करते हैं। मेरे मतलब एक शोभना जी भी इस बात को से वो रखेंगी, इत्तेफाक रखेंगी, नौकरी आपको रोजी रोटी दे देती है पर दोस्त नहीं देती। ऐसी टफ वहाँ पे लाइफ है, और एक एक कदम पे आपके अपने बैचमेट्स, अपने लोग, जगह नहीं है ना ऊपर, तो उसके लिए मारामारी बहुत रहती है। वहाँ दोस्त नहीं होते हैं, पर किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ का पोएट आपका दोस्त ही होगा, उसको कोई आपसे वो नहीं है। अगर आपने कुछ अच्छा लिखा तो और आपका मुरीद और आपका ज़्यादा करीबी दोस्त होगा। तो पोइट्री जो है, पोएट को तो पहले जब वो लिखता है तो उसको हील करती है, और उसके बाद हर सुनने वाले को हील करती है। हमारे ऊपर इस दुनिया में खूबसूरती बचाए रखने का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आप लोग इतनी बखूबी आप सब उसको निभा रहे हैं। स्पॉन्टेनियसली देखिए इनको पहले से मैंने कुछ भी ये जब तक ये कुछ और नहीं करेंगी ये खत्म नहीं होगी है। हाँ, तो ये ना ऐसा हुआ कि हम लोग एक और प्रोग्राम में मिले जहाँ पे इनकी ही बुक का लॉन्च था, और जो आपने फिर बताया सत्या के बारे में, मैंने कहा कि अब तो मेरी नई सीरीज जो मैं भी काम करूँगी, अभी शिव से आगे कुछ और करना है, शक्ति का करना है, तो मैं वहाँ पे आपने कहा कि वाल्मीकि रामायण पढ़ो, तो बहुत अच्छी बात हुई। और एक किताब में इतने सारे आर्टिकल में कितने आपने उसको आयाम दिए हैं। हर महफिल आपको और एनरिच करती है। बहुत सारे लोग बहुत दूर से आए थे, कोई 3:30 बजे से था, कोई 3 बजे से था, कुछ लोग 2 बजे आ गए थे। हम लोग खाना ही खा रहे थे, तो कुछ लोग, हमने कहा 3:30 से प्रोग्राम, बोला यार हम उधर से चल पड़े, हमने कहा चलो वहीं चलते। तो हमने भी कुछ नहीं कहा, तो हमने कहा ऊपर आ जाओ, हम लोग खाना खा रहे हैं साथ में, तुम भी खा लो। तो ये जो अपनापन है वो साहित्य से मिलता है, कला से मिलता है। और मतलब मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग सुन पाए या नहीं सुन पाए, मैं एनरिच हुई हूँ। हाँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमने कहा कि इत्मीनान से पढ़ेंगे, चाहे बहुत दिनों बाद हम चारों एक साथ हैं, है ना? बहुत दिनों बाद। और आपकी बीमारी का क्या हाल है मुझे नहीं मालूम, हम लोग की सारी थकान मिट गई है। सब कुछ एनर्जाइज हो गई हूँ। कल का फंक्शन भी ठीक होगा, कल का भी बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, और आज का भी बहुत ही सुंदर और बहुत खूबसूरत रहा। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विशाल है। ये अच्छे से ये 2 दिन बीत गए हैं। और मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है शोभना जी आपसे कि ऑक्सफोर्ड वाले में जो आप लोग का एक हुआ था, जुगलबंदी, ये पोएट्री और आपका डांस साइमल्टेनियसली, वो इतना यूनिक प्रोग्राम था, और इस तरह से वो मतलब बिल्कुल जहन में हमेशा रहता है कि उसका तो एक पुनरावृत्ति उसकी होनी। मैंने पोइट्री पढ़ी और मीता ने उसी से कोई एक शब्द लिया और उसको गाया।